Welcome all of you. I am your SST teacher and today we study about the next chapter of class 5th. Okay, this is a part 1. I am always telling you, you remember that which part we have studied. Okay, so today we read about the Greenland. You can see here I am already written there, Greenland, the land of ice and snow. Ice and snow. We know now what is the ice and what is the snow. Okay. Today we start. Before that chapter, I want to tell you about something. Look, this globe. Okay. From the class 3rd, 2nd, we studied about the globe. It is a model of Earth. It is told us that where is the poles. All you know where is the poles. This is North Pole upside and this is South Pole. Okay. So whenever we start this chapter, we start from the understand where is this land, this country, where it is situated. Okay. So let me tell you, this is, if you can see here, you see properly, this is globe. Okay, and there in North Pole, near the North Pole, you can see this is a North America. See, look now, North America. It is not clear, but understand this. In North America, eastern side of North America, there is Greenland. Where is? Near the North America continent. It is a country of North America continent. Which continent country it is? Firstly we learn it is country of North America. Clear? Which continent country this is? This is a North America continent country. First thing. Second thing, if we see that the map of the world, where it is? There is, firstly we made the North Pole, there is South Pole. We all know in globe, like this is a globe, this is North Pole, this is South Pole. Okay. After that, this is North Pole, there is North America, there is South America, there is Europe, okay, and there is Asia, and there little bit there Iceland and the some of continents. There in last there is Australia, and there is, this is the Africa continent, this kind of. Okay. So in world map we see this is North America, this is South America, this is Europe, this is Asia, and this is Africa, and this one is Australia. Okay. ये सारे कॉन्टिनेंट हमको पता है. वेयर इज ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड कहाँ पे है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? वेयर इट इज? इट इज अ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. आई टोल्ड यू नॉर्थ अमेरिका हियर, एंड दिस इज नियर द नॉर्थ पोल. हियर द ग्रीनलैंड सिचुएटेड अपसाइड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका की भी नॉर्थ में है ग्रीनलैंड. क्लियर? आई टोल्ड यू द लैटिट्यूड्स, इस पासिस द आर्कटिक लैटिट्यूड. कौन सा लैटिट्यूड निकल रहा है उसके पास से? आर्कटिक लैटिट्यूड. ओके, आई टोल्ड यू ना 5 इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, Arctic circle and the Antarctic circle. These are the 5 main latitudes. Okay. So there is which latitude passes through here from the Greenland? This is the Arctic latitude. Clear? So situation is clear. Where it is located? It is located where? In the North America continent's north side. Okay. Near the North Pole. Next, what is? There is which ocean? There is Atlantic Ocean. Always, whenever you know where it is the Atlantic Ocean, it is very simple. आप हमेशा समझ सकते हो अटलांटिक ओशन कभी भी पूछे कि कहाँ है, बहुत इजी है. जो
बना रहा है, ऐसे एस का शेप बना रहा है यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में. दिस इज द एटलांटिक ओशन. क्लियर? दिस इज अटलांटिक ओशन. आफ्टर दैट अब ग्रीनलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ ऑफ द अटलांटिक ओशन. रिमेंबर दीज थिंग्स ऑलवेज where that particular place is situated. So there we talk about the Greenland. So Greenland is situated in North America continent, north side near the North Pole, and the Atlantic Ocean's north side, and Arctic Circle or Arctic latitude passes through from the Greenland. These are the important things. After that, European countries, this is Europe continent. There is all the countries are known as the European countries. Okay, European countries ये रही. इनके पास एक यहाँ पे एक और छोटा सा लैंड है जिसको हम बोलते हैं आइसलैंड. आइसलैंड आपने सुना होगा. आइसलैंड इसके ईस्टर्न साइड में है. किस साइड में है? Eastern. Always remember, whenever you fill the map, you always remember where is the direction. So this is the north side, up side, this is the south, this is the east, and this is the west. Always remember this thing. Okay, so Iceland where? In a eastern side. This is the east side and this is the Greenland. तो इसके कहाँ पे है? किस साइड पे है? In the eastern side. This is the exact position of Greenland. I hope you understand very well. Okay, so हमने क्या सीखा? कहाँ पे है ग्रीनलैंड, कहाँ पे situated exact position. I am told you again from this is the globe. Okay, this is the North Pole upside and Greenland is a North America upside. There is a Greenland. Okay, this is a country actually. After that, these situation, this location is clarified. अब बात करते हैं कि और क्या इम्पॉर्टेंट है इस ग्रीनलैंड में. हमको लोकेशन क्लियर हो गया. ओके, देन लोकेशन क्लियर करने के बाद हम इसकी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसको और किस नाम से हम जानते हैं. इसको जानते हैं, इसका अनदर नेम है नोन एज, ठीक है. इसका दूसरा नाम है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. व्हाट इज दिस? मिडनाइट सन. व्हाई? बिग मिडनाइट सन मतलब आधी रात का सूरज की धरती. लैंड मीन्स धरती, मिडनाइट आधी रात, सन सूरज. तो ऐसी धरती जहाँ पे आधी रात को सूरज दिखता है. कैसे दिखता है? देखिए, अगेन हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ग्लोब की. आपको पता है हमारी जो अर्थ है ये बिल्कुल ग्लोब उसी का मॉडल है. क्लियर? हमारी जो अर्थ है ये थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है. झुकी होने की वजह से इसका क्या काम है? ये जब हमारा सन की रेज आती है ना तो ये सीधे यहाँ पड़ती हैं इक्वेटर पे. दैट्स वाई जो इक्वेटर का एरिया है वो सबसे ज़्यादा गर्म है. ये हम लोग अपने क्लाइमेट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्लियर? ये जो लाइन है आप देख सकते हो, इस पर देखो, है ना, जो सबसे ज़्यादा डार्क लाइन आपको दिख रही है ना, ये बीच में, दिस इज इक्वेटर. तो इक्वेटर है ये. अब इक्वेटर के ऊपर जितना जाएंगे और जितना हम नीचे जाएंगे उतना ठंड बढ़ेगी, उतना जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होगा. ये भी मैंने आपको बताया है लास्ट में, है ना. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, है ना, किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो क्लाइमेट का फॉर्मेशन है वो कैसे डिपेंड करता है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ये भी एक रीज़न है. तो जो ये लैंड है ग्रीनलैंड, मैंने आपको कहाँ बताई कि वो नॉर्थ पोल के नॉर्थ अमेरिका में, जो फिर नॉर्थ पोल है और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीच में है जहाँ पे आर्कटिक सर्कल उसको पास थ्रू कर रहा है वहाँ से. अब जब हमारी अर्थ टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है, तो कुछ टाइम ऐसा आता है हमारी अर्थ का कि जब वो झुकी हुई है और वो घूम भी रही है, रेवोलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है. तो रोटेट करते करते वो एक बार ऐसे टाइम पे आती है जब उसका जो नॉर्थ पोल है वो सन के साइड में रहता है. ये टाइम होता है यहाँ पे समर का. समर के टाइम में यहाँ पे 2 to 3 मंथ का समर होता है. क्लियर? 2 to 3 मंथ
जहाँ पे आपने नॉर्वे भी सुना होगा अगर आपकी जीके की बुक्स में या कहीं पे, कि नॉर्वे इज़ अ मिडनाइट सन जो कंट्री है उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्वे भी ग्रीनलैंड के पास में ही है और वहाँ पर 2-3 मंथ वहाँ पे क्या होता है, समर का सीज़न रहता है और उस समर के सीज़न में जो सन है वो पूरी तरीके से, जैसे अपने यहाँ क्या होता है अंधेरा हो जाता है ना पूरा रात में, शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद क्या होता है पूरा अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ग्रीनलैंड का एरिया है, जो नॉर्थ पोल का एरिया है, वहाँ पूरे टाइम पे अंधेरा नहीं होता जब वो रेवोलेट कर रहा है। जब उसका नॉर्थ पोल हमारे सन के सामने ही है, अब वो रोटेट कर तो रही है, हमारी अर्थ तो रोटेट कर रही है, बट वो रेवोलेट करने में तो उसको टाइम लग रहा है ना, ऐसे घूमने में तो उसको टाइम लग रहा है, 365 डेज का टाइम लगता है ना रेवोलेट करने में। रेवोलेट आपको पता है ना, जब हमारा ये सन है ना, और ये हमारी अर्थ है, तो जब वो ऐसे घूम रही है ना, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और जब वो जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे, एक्सिस किसको बोलेंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पोल वाला नहीं, ये जो इसके नीचे एक और पॉइंट आपको दिख रहा है, ओके, तो ये इस अपने एक्सिस पे जब घूमती है, अब ऐसे ऐसे घूम रही है ना, इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अब समझ में आया, ये आपकी अर्थ है और ये सन है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो ऐसा टाइम आता है घूमते घूमते कि वो सन के सामने ही रहता है अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ, और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा, जैसे अपने रात को अंधेरा हो जाता है ऐसा टाइम नहीं आता है, वहाँ सूरज पूरे 24 आवर्स आपको दिखता है। इसीलिए हम इस लैंड को मिडनाइट सन लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मध्य रात्रि में सूरज दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं विंटर सीजन की। यहाँ पर लगभग 9 मंथ विंटर सीजन, ओके, विंटर सीजन देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मंथ्स। यहाँ पे 9 to 10 मंथ्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली विंटर सीजन होता है। आई टोल्ड यू कि अगर हमारी जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ ये इक्वेटर है, यहाँ पे क्या होगा टॉरिड जोन है, हीट जोन, आई टोल्ड यू बिफोर दैट चैप्टर 3 आई थिंक, ओके। तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि इक्वेटर सबसे गर्म भाग है, जबकि पोल्स जो हैं हमारे नॉर्थ और साउथ पोल ये सबसे ठंडे एरिया है, फ्रिजिड जोन है। कौन से जोन है? आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे कौन से हैं? फ्रिजिड जोन है, और हमारा ग्रीनलैंड फ्रिजिड जोन में ही आता है। कौन से जोन में आता है? फ्रिजिड जोन में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंटर सीजन अप्रोक्सीमेटली फुल ईयर रहता है, पूरे साल रहता है। विंटर्स में इसका टेम्परेचर बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जबकि समर में अगर हम समर सीजन की बात करें तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है, जितना अपने हम सबके यहाँ दिसंबर में आता है ना, जनवरी दिसंबर में, उतना इनके यहाँ समर में सीजन में इनका टेम्परेचर रहता है, उससे भी लोएस्ट ही रहता है, ओके। तो ये बात हुई इनके सीजन्स की। अब बात करते हैं कि इन यहाँ पे जब ऐसी बातें हैं, जब ये चीज़ हो रही है कि सन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोग रहते कैसे हैं। एक और ग्रीनलैंड की कैपिटल, मेन थिंग, कैपिटल यहाँ की है गॉटा, ओके। What is the capital of Greenland? Because it is a country, so country की capital it is surely. So this is a capital. This is the name of the capital is Godtap. Clear? Godtap is a capital, and this is the main city also of this country. अब बात करते हैं कि ये यहाँ पे लोग रहते कैसे हैं। क्लियर? ये ग्रीनलैंड है, नॉर्थ में है, ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि 9 से 10 महीने विंटर सीजन रहता है और लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है कि बिल्कुल जो स्नोफॉल होता है ना, जो हम लोग को मूवीज़ में देख के बहुत अच्छा लगता है, वो यहाँ पे हर वक्त होते रहते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से वहाँ लोग सर्वाइव कैसे करें, रहें कैसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। शुरू में जब बहुत साल पहले, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था,
तो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको हम बोलते थे एस्कीमोज। आपने शायद नाम सुना होगा एस्कीमोज। जो लोग ठंडे एरिया में रहते हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं स्पेशली ग्रीनलैंड के, उनको हम बोलते हैं एस्कीमोज। क्या बोलते हैं, एक बार ध्यान से स्पेलिंग को देख लो। उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एस्कीमोज। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टेम्परेचर पढ़ लिया, आइसलैंड पढ़ लिया, क्लाइमेट वेयर इट इज इन अ फ्रिजिड जोन। याद रखिएगा कौन से जोन में है ये, फ्रिजिड जोन। क्लाइमेट कैसा है इसका, कोल्ड। कैसा क्लाइमेट है यहाँ पे, है ना ग्रीनलैंड, तो कोल्ड। कौन से सर्कल के पास पड़ता है, आर्कटिक सर्कल के पास में, हॉरिजॉन में है। और यहाँ पे हमेशा जो स्नोफॉल है ये थ्रू आउट ईयर होता रहता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, ग्लेशियर्स, लो माउंटेन्स। अब यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं लो माउंटेन्स। दूसरा पाया जाता है यहाँ पे ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स, ठीक है। और नेक्स्ट है आइसबर्ग्स। अब ये क्या चीज़ें हैं, लो माउंटेन। देखिए जैसे स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, स्नोफॉल धीरे 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 होता जा रहा है और वो किसी मान लीजिए पत्थर पे गिरा, ठीक है। जस्ट सपोज कि इसको इरेज कर देते हैं। जस्ट सपोज कि ये यहाँ पे एक लैंड, कोई पत्थर है, वो कहीं ऊंची है कहीं नीची है, ऐसे करके, ठीक है। अब वो स्नोफॉल हो रहा है तो ये जो थोड़ा सा उठा हुआ पत्थर है ना, जो उठी हुई थोड़ी सी रॉक है, उस पर भी स्नोफॉल हो रहा है। और होते होते इतनी ज़्यादा स्नो गिरती है, क्योंकि थ्रू आउट ईयर यहाँ पे ठंड रहती है, तो इतनी ज़्यादा स्नो यहाँ पे गिरती है कि ये एक स्मॉल माउंटेन, लो माउंटेन का फेस ले लेते हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल होती है। दिस इज अ लो माउंटेन। क्लियर। नेक्स्ट इज अ ग्लेशियर। अब देखो ग्लेशियर्स क्या होते हैं। अब विंटर के टाइम में तो स्नोफॉल हुआ, ये छोटे छोटे माउंटेन्स बन गए। क्लियर। माउंटेन्स बनने के बाद रिवर्स, जब समर सीजन आया, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो थोड़ा बहुत ये जो आइस है ये मेल्ट होगा गर्मी से, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, रिवर बना लेगा, ठीक है। अब इसने रिवर बना ली। ये रिवर जब हमारा समर सीजन है तब तो ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इसमें जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। बट जब फिर से विंटर सीजन आ गया और अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मंथ के लिए आ गया, देन व्हाट हैपेंड, देन ये जो रिवर है ये उसी जगह पे जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, बिकॉज द टेम्परेचर। तो ये यहाँ पे कोल्ड की वजह से फ्रीज हो जाती है, जिसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। इसी जमी हुई नदी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी कम टू द आइसबर्ग। व्हाट इज द आइसबर्ग। आप सबने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, बहुत फेवरेट होती है बच्चों की, है ना। कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हो, आपने कई बार उसमें आइस क्यूब डालते हो ना, आइस क्यूब डालते हो तो क्या देखते हो, अगर आपने जस्ट सपोज इसे इरेज कर दूं, चलो ठीक है, जस्ट सपोज आपने ग्लास में आइस डाला, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी कोल्ड ड्रिंक फिल है ना, यहाँ तक आपकी कोल्ड ड्रिंक फिल है। आपने उसमें आइस क्यूब डाला तो क्या होता है, थोड़ी सी आइस तो ऊपर दिख रही होती है आपको, ठीक है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन उसका पूरा पार्ट नीचे यहाँ अंदर होता है। देखा है ये चीज़, हम सब ने ये चीज़ करी है, नोटिस भी करी है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो ये कोल्ड ड्रिंक के ऊपर वाला हिस्सा है ये अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 10% होता है। कितने परसेंट होता है, 10%। और उसके कोल्ड ड्रिंक के अंदर बर्फ का जितना हिस्सा है आइस क्यूब का, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 90%। ये बात समझ में आ गई। अब आप सोचोगे ये मैम कोल्ड ड्रिंक क्यों बता रही है, जस्ट बिकॉज आइसबर्ग आपको समझाने के लिए। देखिए जब हम आर्कटिक सर्कल के आसपास के एरिया में, जो हमारा अटलांटिक ओशन, आई टोल्ड यू एस की शेप में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन, ऊपर हमारा आर्कटिक ओशन भी है। तो तो जब हमारी शिप एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो आइस क्यूब्स हैं, है ना। अब माउंटेन है, मान लीजिए ये रिवर ओशन है और यहाँ पे ग्रीनलैंड है, और इसके यहाँ कॉर्नर में ना, यहाँ पे क्या हो गया कि एक माउंटेन बन गया, ठीक है। अब वहाँ पे हवा तेज चली या कुछ ऐसा हुआ
कि अब जो वाटर है, ओशन का वाटर है, उसके फोर्स की वजह से ये जो आइस क्यूब है ये टूट के ओशन में आ गया, ठीक है। वो बड़ा सा पहाड़ जैसा जो है आइस का टुकड़ा, वो यहाँ पे आ गया ओशन में। उसी जो टुकड़ा है ना आइस का बड़ा सा, उसी को हम आइसबर्ग कहते हैं। क्लियर? किसको कहते हैं आइसबर्ग? जो बड़ा सा पहाड़ की तरह टूटा हुआ टुकड़ा होता है आइस का, जो कि माउंटेन से या ग्लेशियर से टूट के अलग हो जाता है, उसको हम आइसबर्ग कहते हैं, जो कि पानी में फ्लोट करता है। क्लियर? आइसबर्ग हमेशा पानी में फ्लोट करता है, उसको हम आइसबर्ग कहते हैं। अगर वो लैंड पे सिचुएटेड है तो उसको हम लो माउंटेन कहेंगे। आई होप अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। दिस इज वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स। क्योंकि क्या होता है, हमारी शिप्स भी कैसे होती हैं, जैसे सपोज कि ये हमारी शिप है, ठीक है, सॉरी नाव जैसी बन रही है बट है ना, ये हमारी शिप है। और शिप क्या करती है कि इसका पूरा लगभग जो पार्ट है, इतना पार्ट जो है वो हमारा ओशन के अंदर रहता है, ठीक है। और जो ये थोड़ा सा पार्ट जो ऊपर का डेक का पार्ट है वो बाहर रहता है। अब मान लीजिए कोई आइस क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी आइसबर्ग है। अब ये बड़ा सा टुकड़ा है यहाँ आइस का। अब ऊपर से देखने में तो ये क्या लग रहा है कि सिर्फ इतना बड़ा है, लेकिन उसका 90% भाग कहाँ है, नीचे पानी के अंदर है। और शिप अगर गलती से भी उसमें लग गई, उसके साथ भिड़ गई, तो इतना मजबूत, इतना बड़ा पहाड़ की तरह, वो माउंटेन की तरह होता है कि शिप के लिए बहुत हार्मफुल होता है। वो उस शिप को वहाँ पे सिंक कर सकता है, उसको डुबो सकता है। याद हो गया आपको आइसबर्ग क्या है? आपने अगर छोटे बच्चों ने मे बी देखी होगी मूवी टाइटैनिक, याद हो, है ना, या पेरेंट्स ने देखी होगी टाइटैनिक। उसमें इसी आइसबर्ग की वजह से ही हमारी जो शिप थी टाइटैनिक, वो वहाँ पे डूब जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब तक वो लोग अपनी शिप मोड़ रहे होते हैं ना, टर्न कर रहे होते हैं, कि उनको दिखता है कि सामने आइसबर्ग है, ठीक है, तो जब तक वो सोचते हैं अरे अपनी शिप को रोको, अब इतनी बड़ी शिप है, एकदम से तो रुक नहीं जाएगी। तो जब तक वो इसको कंट्रोल करते हैं और टर्न करने की कोशिश करते हैं कि अपनी शिप को हम घुमा ले जाएं, उतनी देर में क्या होता है, उसका नीचे का पार्ट शिप का नीचे आइसबर्ग से टच कर जाता है और वो उसको तोड़ देता है शिप के नीचे के पार्ट को, जिससे क्या होता है, जो पानी है वो शिप में भरना शुरू हो जाता है और शिप क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है। क्लियर? तो हमने लो माउंटेन्स, ग्लेशियर, आइसबर्ग, वेयर इज द ग्रीनलैंड सिचुएटेड, ये भी पढ़ लिया। कैपिटल इज अ गॉटाप, वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम एस्किमोज बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। दिस इज इनफ फॉर दिस पार्ट 1 and after that part 2 we studied about the animals, vegetation, how the people survive there, वहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। So thanks for this part 1 and we will meet with the next part 2. Thank you.